This is Saleem bin Muhammad Rafi, your host, and here is my YouTube channel Zamir Universal. Finally, a small, tiny piece of land, a speck on the global map, a illegitimate state, a Zionist state, a state created by force and by deception by the greatest terrorist on this earth, Great Britain and America. And the terrorism started from the Jews, and the first terrorist you would have heard in the 18th century. That is, I'm talking going way back to the First World War, were the Jews who revolted against Great Britain after the fall of Ottoman Empire, when the Great Britain had a hold on Palestine, the sacred most state, and Jerusalem. What they did to the British soldiers, and in turn the British soldiers turned their guns on the innocent unarmed Palestinians. And you had the greatest exodus on earth from that sacred Palestinian land. And you had these thieves, these robbers, these killers of babies and women, the scum of the society, thrown out of 79 countries in the past many thousand years, brought and by force implanted on this sacred land, and gave them in the dish after killing millions of innocent Palestinian men and women in 1940s, and created this illegitimate child or illegitimate state. Now I'm talking to you this because this is the last chance for the whole of 250 million Americans to save their country from their Jewish lobby, which in fact controls the White House, the Sleepy Joe, the weakest president in the history of United States of America. They have held him from his throat, and see what they are doing. They are forcing that man to send his troops after being defeated in Vietnam, being defeated in Iraq, defeated in Afghanistan, defeated in Syria, and as carrying the greatest and the largest debt to balance its budget in trillions and trillions of dollars. Have no money for Medicare, no money for the schools, no money for the infrastructure, no money even for running the Congress. Every now and then, as a ad hoc, he gets 1 or 2 months budget to pay the federal employees. And now making another mistake, a helpless 250 million Americans are being held hostage to their small time group of Jewish lobby, which controls the White House, they control the Congress. And see what they have done to the Secretary of Defense, how he disappeared and suddenly had a prostate cancer and hospitalized. Because all he said to another crazy man on earth with a matchstick in his hand, to any time lit the Red Sea and the whole world with kerosene. And this man holding the stick is called Netanyahu. A crazy, a madman, mentally deranged, and insisting, in spite of the fact he has thousands of his own men who are now in depression, who are being killed and carried by helicopters. All the hospitals of Israel are filled with the injured and handicapped.
according to his own state estimate, 30,000 people are now crippled and handicapped. Unfortunately, they are not his children. His only son is walking away and not doing any army service. The ex-chief of army staff's son killed. Many other in his cabinet had their children lost. Many ordinary Israelis, men and women living, whose kids should be in the college, married, having children and families. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने ज़िंदगी में कभी ये टाइम नहीं देखा था कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि इजराइल और अमेरिका आमने सामने खड़े हो जाएंगे और इसराइल अमेरिका की शारक को पकड़ लेगा। वैसे तो पूरा अमेरिका, उसकी सियासत, बैंकिंग, सब कुछ, कांग्रेस से लेकर सब कुछ इजराइल के कंट्रोल में है, लेकिन ये कभी नहीं देखा था कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि ओपनली इजराइल अमेरिका का गला पकड़ लेगा, उसकी शारक पकड़ लेगा और दुनिया के सामने ये बात कहेगा कि ना तो हम कोई मुस्लिम कंट्री हैं, ना हम तुम्हारा ले पालक कोई बच्चा है, ना कोई और है। अगर तुमने हमारे मामलात, हमारे नजरिए और हमारे प्लान के खिलाफ जाने की कोशिश की तो हम तुम्हारा जो हशर करेंगे, हम तुम्हें सुपर पावर की कुर्सी से उतार सकते हैं। आज पहली दफा वो नजारा हमने दुनिया के सामने देखा है और देख रहे हैं कि जब पूरी अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट नेतन्याहू के आगे बेबस हो चुकी है। इतनी बुरी तरह अमेरिका आज बेबस है कि आप देख लें कि सुपर पावर होकर इसराइल ने उसको गले से पकड़ लिया। आप जानते हैं कि कल हमास के जो लीडर हैं उनको ड्रोन हमले में बैरूत में मार दिया गया, तो उसके साथ तकरीबन 6-7 लोग और भी मारे गए थे। उसके बाद सूरत हाल ये पैदा होती है कि हिजबुल्ला अब पूरी अपनी तैयारी करी है, वो हमला करने जा रहे हैं, यमन हमला करने जा रहा है, ईरान ने अपनी फौजें हाई अलर्ट कर दी हैं, इजराइल ने पूरे मुल्क के अंदर फौजें हाई अलर्ट कर दी है, लोगों को कहा है कि वो घरों से चले जाएं और खास तौर पर बॉर्डर की साइड से। ये सारी सूरत हाल आप सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद मामला तो उससे भी ज्यादा खतरनाक हुए कि जैसे ड्रोन हमला हुआ तो अमेरिका ने ऐलान किया कि उसने कहा कि इजराइल ने बदतरीन गलती की और हमें तमाद में लिए बगैर ये काम कर दिया जिसको किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं समझा जाएगा। और जब ये मामला हुआ तो उसी वक्त आप जानते हैं कि जंग शुरू होने वाली है, बड़े पैमाने की जो रीजनल जंग है वो शुरू होने वाली है। और उसके साथ एक अजीब मामला था कि गुफ्तगू जो हो रही थी वो खत्म हुई। अब उसके बाद मामला यहां तक होते तो फिर अजीब था। ये इजराइल के 2 मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा कि सारे फलस्तीन से, तमाम गजा से, वेस्ट बैंक, ये वो, उसे कहा फलस्तीनियों को अब निकालना पड़ेगा और निकाल दें, इनको इस मुल्क से ही निकाल दें और इसके बाद अब हमें यहाँ पर लाकर अपने लोग बहाल करने पड़ेंगे, बसाने पड़ेंगे और उसके अलावा इस जंग को खत्म करने का दूसरा कोई तरीका नहीं है। यानी उसने क्लियरली कह दिया कि चाहे न्यूक्लियर मारना पड़े, कुछ मार ले, कुछ भी कर ले, निकाले अब यहां से इसको। और नेतन्याहू ने, आप जानते हैं क्या हरकत करना शुरू की है। पहले नेतन्याहू ये काम कर रहा था कि उसने कहा कि ठीक है, हम यूरोपियन कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में, हम कनाडा में आप लोगों को भेजेंगे। अब उसने काम क्या करना शुरू किया है, वो कह रहा है कि इनको कॉन्गो भेजो, इनको अफ्रीका भेजो, हेटी भेजो, फलाना भेजो, ढिमकाना भेजो। यानी हम इनको अब वहां पर भेजेंगे कि जहां पर इनको पानी नसीब नहीं होगा। ऐसा लग रहा है कि इन सब ने फैसला कर लिया है कि दुनिया में तीसरी जंग अजीम छिड़नी है तो अब छिड़ जाए। लेकिन इन 2 बदबख्त मिनिस्टर्स ने क्या बात की है, आप जरा अंदाजा कर लें इस शख्स की सूरत हाल के। स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से जरा ये ट्वीट समझिए, ये किसी आम जगह से आया होता तो हम कहते ये मैथ्यू मिलर जैसल में स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से उसने कहा कि हम रिजेक्ट करते हैं। इसराइल के मिनिस्टर्स ने ये जो बात की है, किसी सूरत फलस्तीनियों को 1 जनवरी तक, न्यू ईयर तक तुम लोग निकालो फौजें, ज्यादा से ज्यादा 7 जनवरी। उन्होंने काम क्या किया, उन्होंने बजाय करने के उन्होंने बैरूत में जाकर हमास के इस लीडर को मार दिया और अब वो वहां से जवाब आने वाले। देखिए, हमास ने तो इसका बदला लेना है इजराइल के अंदर, लेकिन उसके साथ साथ हिजबुल्ला ने भी अब बदला लेना है और तो वो जंग छिड़ने वाली है। और उसके साथ आप अंदाजा कर सकते हैं कि ईरान भी जंग छेड़ने के लिए तैयार है और ईरान ने क्लियरली अपनी फौजों को कह दिया और डिप्लॉय कर दिए हैं कि आप रेडी रहे जंग के लिए। हम जिस जंग की तरफ बढ़े हैं उसमें इजराइल क्या, ये पूरे रीजन के अंदर आग लगने वाली है और ये बचेगा कोई भी नहीं।
अब अमेरिका क्या करेगा? देखिए, अमेरिका से इन्होंने असल में फैसला कर लिया है कि हमने इस जंग को थर्ड वर्ल्ड वॉर में लेकर जाना है। वरना आप बता दें, इसराइल का ये जो फॉरेन मिनिस्टर है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा कि हम तीसरी जंग अजीम के मिडल में आ चुके हैं। अगर इसराइल का फॉरेन मिनिस्टर, जो सबसे ताकतवर पोस्ट है, वो उठकर ये बात कहेगा कि हम तीसरी जंग अजीम के दरमियान में आ चुके हैं, अब हम पीछे नहीं हट सकते, तो इसका क्या मतलब है? उसका क्लियरली मतलब है कि हम तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़ रहे हैं। जब दुनिया के अंदर पुतिन ये बात कह रहा है कि हम तीसरी जंग अजीम की तरफ जा रहे हैं, जब इलान मस्क उठकर कह रहे हैं कि हम खामोशी के साथ तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़ रहे हैं, पूरा वर्ल्ड कह रहा है, जितने तजियानगार है वो सारे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़े हैं, तो फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर आप बता दें कि क्या किसी को कुछ शक है कि हम इस बड़ी तबाही की तरफ नहीं जा रहे? देखिए, इन्होंने हमास का जो लीडर मारा है वो मारा है बैरूत के अंदर। हिजबुल्लाह ने अब इनको देना है जवाब, और वो जवाब देंगे, डेफिनेटली बात है। लेकिन इधर से हमास ने अब जो हमले हैं इन पर वो बड़े तेज करने जा रहे हैं। असल में कहानी ये होती है कि जब इस तरह की तंजीमें होती हैं, उनके जो लोग मारे जाते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता। वो इस सारी सूरत हाल में देखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान में मुल्ला उमर के मर जाने के बाद क्या अफगान तालिबान जंग हार गए थे? शिद्दत आ गई थी, उन्होंने कहा था बदला लेना है, हत्ता कि मुल्ला उमर अपनी तबाही मौत मरा था। लेकिन इस सारी सूरत हाल में उन्होंने जंग नहीं रोकी, और उसके बाद उन्होंने बल्कि अमेरिका को मजीद मारा कि अब हमने इनको निकालना यहाँ से, इससे पहले कि हमारे और भी लीडर्स मरे पहुंचे, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें मैनेज करने के लिए, तो वो मैनेज करना जानते हैं। इसीलिए आप देख ले, आपने कभी देखा है कि जो बाइडेन खुद चल के आया हो, अमेरिका का प्रेसिडेंट किसी मुल्क में जाए, उसका फॉरेन मिनिस्टर जाए, उसका आर्मी चीफ जाए, उसका CIA का चीफ से लेकर तमाम लोग जाए, और उसके बाद भी ये सूरत हाल हो कि वो कह दे नहीं। अभी तक की आप जंग देख लें तो तकरीबन 88 दिन कंप्लीट हो गए हैं, तो 88 दिनों के बाद सूरत हाल क्या बन रही है कि इजराइल जंग हारा है। लेकिन देखिए, जंगों के अंदर लोग मरते हैं, लीडर्स भी मरते हैं एक दूसरे के, ये मामला नहीं होता, ये लड़ाई चलती है। लेकिन आप देखें कि उसने किसी साइड पर जंग रोकने का अभी तक इंदिया दिया, वो अब इसको बढ़ा रहा है, वो ओरिजिनल जंग बना रहा है। और आप ये देखेंगे एक बड़ी अजीबो गरीब चीज, वो अमेरिका को कह रहा है कि तुमने ये जंग लड़ने के लिए आना है। बल्कि अब एक और अजीब गुफ्तगू हो रही है, और वो गुफ्तगू बड़ी अजीबो गरीब है। वो कह रहे हैं कि इजराइल को न्यूक्लियर हथियार दे दे अमेरिका। हत्ता कि इसराइल के पास है, लेकिन अमेरिका के अंदर बैठे हुए वो ताकतवर लोग जो इसराइल के लिए लॉबी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसराइल को न्यूक्लियर हथियार दे ताकि वो इन पर हमला कर दे। अब असल में उन्होंने अमेरिका को क्लियरली वार्न कर दिया है कि तुम यहाँ पर भेजोगे, बहुत ज्यादा असला भेजोगे, हम तुम्हारे बाप हैं और हम तुम्हारे हलक में हाथ डालकर ये असला निकालेंगे। तुम यहाँ पर भेजोगे, मिसाइल भेजो, तुमसे अपना मुल्क संभलता नहीं संभलता, यहाँ पर आओ। 12,000 किलोमीटर दूर है अमेरिका रेड सी से, बताए 12,000 किलोमीटर, उसके तो बॉर्डरों को समाका का इलाका है ये। वो अभी मतलब ये चंद पिछले 2-3 घंटों में इन तमाम पर, किसी पर मिसाइल, किसी पर ड्रोन्स, किसी पर एंटी टैंक मिसाइल, इन सब के साथ ये हमले किए गए, और वहां पर जो है ना इनका नुकसान हो रहा है। लेकिन अब ये मामलात इस तरह के हैं कि ये हमले तो बहुत बड़े हैं, लेकिन अब मतलब वहां पर बॉर्डर पे इस तरह की सूरत हाल है कि ये एक नॉर्मल चीज बन चुकी है। यानी चूंकि हमले 24 घंटे जारी हैं, तो अब ये नॉर्मल सा वहां पर लगता है कि अच्छा यार उन्होंने मिसाइल चला दिया, अच्छा यार ठीक है। तो इतना मतलब बॉर्डर की सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब है कि मिसाइल चल रहे हैं, फौजी मर रहे हैं, तबाही हो रही है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं अच्छा ये तो अब नॉर्मल, अब ये तो डेली की रूटीन है। तो इसलिए अब मैं उस तफसील में नहीं जा रहा। आखिर में मैं आपको चाइना के हवाले से अपडेट कर देता हूं। और चाइना ने नाज़रीन एक बड़ा इक़दाम उठाया। चाइना ने एक पीस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, और इसमें उन्होंने कहा है कि अब फ़लस्तीनी रियासत की आज़ादी के लिए एक ठोस इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मिडल ईस्ट अमेरिका के हाथ से निकल गया है। मिडल ईस्ट का आप देखेंगे कि जब भी कुछ सेटलमेंट होगी वो चाइना करवाएगा, अमेरिका नहीं करवाएगा। इवन आप देखेंगे कि यूक्रेन की जो सेटलमेंट है वो भी चाइना करवाएगा। अमेरिका के हाथ से अब मामलात ख़त्म हो गए। अरबों ने बड़ा इन पर वो मुनसर हुए थे, लेकिन अरबों की कोई उन्होंने वक़्त नहीं डाली। और अब अरब बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है अमेरिका से। एक हद तक तो आपको बाहर से चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन अंदर इनके आपस में मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। और अब चाइना ने कमान संभाली हुई है। अब वो पहले उन्होंने बयानात देने शुरू किया, अब वो कॉन्फ्रेंसेस करवा रहा है। अब देखेंगे कि आने वाले दिनों में आप अचानक चाइना के वज़ीर ख़ारजा आप देखेंगे बहुत जल्द मिडल ईस्ट का दौरा करने वाले हैं।
ٹھیک ہے نا, وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں, ایٹ اینڈ دی اینڈ وہ یہی کریں گے. اب دیکھیے, چائنا سیز روڈ میپ آن فیوچر پیلسٹینین اسٹیٹ مسٹ بی بائنڈنگ. صحیح ہے نا, کہ ان کی ہر صورت میں مطلب کوئی ایسی سیٹلمنٹ مڈل ایسٹ میں نہیں ہو سکتی اگر اس میں فلسطینی ریاست شامل نہیں ہے. تو یہ ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت اللہ حافظ. پڑی ہے کہ جو اگلی خبر ہے, جو اگلا جہاز اڑایا گیا ہے وہ امریکہ کا ہے, جس کے بارے میں بالکل کنفرم ہے. یعنی اس جہاز کا تو کنفرم یہ نہیں نہ ہو رہا کہ بھائی یہ تھا کس کا. تو یہ جو اگلا جہاز تباہ کیا گیا ہے, یہ امریکی جو یو ایس سینٹرل کمانڈ ہے انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ امریکن کنٹینر شپ از ڈسٹرائڈ ود بلسٹک میزائل. تو بلسٹک میزائلوں کے ساتھ, جو کہ سب سے خطرناک میزائل ان کے سمجھے جاتے ہیں, جن کی رینج 2000 کلومیٹر ہے, اور یہی سب سے بڑا ایسٹ یمنیوں کا سمجھا جاتا ہے, یہی سب سے بڑے ان کے خطرناک میزائل ہیں. تو اس کے ساتھ انہوں نے نشانہ بنایا. اچھا, اب اس میں 2-3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ نے سمجھنی ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ جہاز تو اسرائیل نہیں جا رہا تھا, یہ تو امریکہ کا جہاز تھا اور امریکہ جا رہا تھا. تو آپ نے ڈائریکٹ امریکہ ہی کے جہاز کو نشانہ بنایا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جہاز تو ریڈ سی سے دور تھا, یہ ریڈ سی میں سے تو گزرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا, یہ تو اپنے اس دوسرے روٹ سے جو یہ افریقہ سے گھوم کر جا رہے ہیں, تو یہ تو اسی روٹ سے جا رہا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر امریکی جہاز ریڈ سی, یعنی آلریڈی جو امریکنز ہیں اور ان کی نیوی نے یہ کہہ چکا ہے کہ امریکن جہاز ریڈ سی سے اوائڈ کریں. جب سے انہوں نے سٹرائک کی ہے اس کے بعد انہوں نے احکامات جاری کیے ہیں کہ ریڈ سی سے اوائڈ کریں. اچھا, اب یہ تو ریڈ سی سے دور ہے, تو اس کے باوجود اس کو تباہ کر دیا ہے. تو اٹس مین کہ اب معاملہ صرف ریڈ سی والا امریکہ کے لیے نہیں رہا, اب آپ اس ریجن میں جہاں بھی آپ کا جہاز ہوگا آپ کو ہٹ کیا جائے گا. اور تیسری بات اسی سے لنک ہے کہ اگر یہ بلسٹک میزائل استعمال کیا گیا لانگ رینج کا, تو اٹس مین کہ یہ کوسٹل لائن سے تو کافی دور ہے, اس لیے آپ کو بلسٹک میزائل استعمال کرنا پڑا, ورنہ آپ ڈرون بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ کہیں دور رینج میں تھا تو بلسٹک میزائل استعمال کیا گیا. تو اٹس مین کہ اب آپ دور ہوں یا قریب ہوں, چاہے آپ ریڈ سی میں ہوں یا عربین سی میں ہوں یا انڈین اوشن میں, اب اس سے فرق نہیں پڑ رہا. آپ نے جو یمن کے خلاف جنگ شروع کی ہے تو اب یمن نے براہ راست آپ پر حملے شروع کر دیے ہیں. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ اب ہوئی ہے کہ ایک ساتھ یہ چند منٹ کا ناظرین وقفہ ہے, چند منٹ کا. یعنی ایک خبر آئی کہ جناب ادھر برطانیہ کا جہاز اڑا دیا, اگلے 5 منٹ بعد خبر آئی کہ امریکن جہاز جو ہے اس کو اڑا دیا گیا. تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی یمن جو پچھلے 2 دنوں میں خبریں آ رہی تھی کہ ہم رسپونڈ کریں گے ویری سون, جناب ہماری جنگیں مشقی ہو رہی ہیں, تو اب شاید انہوں نے اپنے حملے جو ہیں وہ ایک نئی ویو کے ساتھ, نئے طرز کے ساتھ لانچ کرنا شروع کر دیے ہیں. سو آپ آگے آنے والے گھنٹوں میں بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کوئی سٹرائک بیک اس پر شاید کر سکتا ہے, کیونکہ یو کے حوالے سے بس ملی جلی خبریں ہیں. کبھی یو کے کہتا ہے کہ نہیں یہ حملے ہم نے نہیں کیے, یو کے پیچھے بھی ہٹنا چاہ رہا ہے, امریکہ کے ساتھ جانا بھی مجبوری ہے. تو وہ کشمکش میں ہے, اس کے حوالے سے چیزیں کلیئر نہیں ہیں. لیکن ابھی یو کے پرائم منسٹر کا بیان ضرور آیا ہے, اور یو کے کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے اٹیکس آن شپس مسٹ سٹاپ اینڈ وی ول ڈو ایوری تھنگ ٹو ریڈیوس دیم. ٹھیک ہے جی, بالکل رکنے چاہیے اور آپ ان کو روکیں گے. لیکن اب اس میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے, عام چیز یونیورسل ٹیلی ویژن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اس کے بعد بیل بٹن پہ کلک کریں اور اپنے کامنٹس کے سیکشن میں اپنے قیمتی جو خیالات کا اظہار ضرور